Good afternoon, everyone. Dear friends, today we are going to start circulatory system. हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, हमारे लंग्स लेते हैं श्वास. वी आर टेकिंग ब्रेथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. So we are taking the oxygen and it is going in the lungs. So we are breathing with the help of nose or mouth. तो एक तरफ तो हम श्वास लेते हैं, दूसरी तरफ हम खाना खाते हैं. We are eating food. So this food is going in the stomach. Then passing from the different parts of intestine. And finally, there are lots of energy, minerals, nutrient are available in the food material. तो एक तरफ हमने श्वास ली, दूसरी तरफ हमने खाना खाया. तो हमारे शरीर में एक हमने पाइप का जाल फैला दिया. सो दीज आर द पाइपलाइंस. इधर से इसने न्यूट्रिएंट को भी लिया, क्योंकि हमारे शरीर की सभी सेल्स को न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस पाइपलाइन वी हैव टेकन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द intestine, and with the same pipeline we have taken oxygen from the lungs. तो हमें एक तरफ से ऑक्सीजन भी मिल गई, दूसरी तरफ से खाना भी मिल गया. और इसके अंदर फिर दौड़ता हुआ ब्लड, एक दौड़ता हुआ लिक्विड, वन रनिंग liquidy part, that is called blood. Now with the help of this blood, this is reaching to each and every organ, reaching to each and every organ and each and every cells. तो इस दौड़ते हुए ब्लड के द्वारा ये मटेरियल हमारी सभी सेल्स को पहुंचा, हमारी सभी सेल्स को पहुंचा. ये हमारी सेल है. सेल को ऑक्सीजन भी मिली, सेल को फूड भी मिला, न्यूट्रिएंट भी मिला. So cell has received the oxygen as well as the food material. और बदले में सेल ने कुछ टॉक्सिन्स छोड़ दिए, CO2 को छोड़ दिया, और इस CO2 को वापस इसी ब्लड के माध्यम से आगे बढ़ा दिया. So we are receiving the oxygen, we are receiving the food with the help of blood vessels, and this nutrient and oxygen running in the blood vessels with the help of blood, reaching to each and every cells, and cell are utilizing this oxygen as well as the food material, and each and every cell releasing the toxins, releasing the carbon dioxide, and the same oxygen and carbon dioxide is again circulating in the blood vessels. उसे भी ब्लड में घुमा दिया और इसको घुमा कर ले गए किडनी में, और किडनी में इसे we have taken this blood to the kidney, we have taken this blood to the lungs, और फिर से अशुद्ध पदार्थों को किडनी के माध्यम से और लंग्स के माध्यम से फिर से बाहर निकाल दिया. तो ये सारा काम कौन करता है? ये सारा काम होता है उन पाइपलाइंस में पाए जाने वाले ब्लड के माध्यम से. सो दिस होल वर्क इज डन बाय द ब्लड running in the pipeline. So now, but the most important thing, this blood should be
in speed, in the proper speed. इस ब्लड की एक स्पीड होना चाहिए। उस स्पीड को बनाए रखने के लिए हमने एक मोटर डाल दी अपनी बॉडी में, और उस मोटर को और उस पंप को हमने कह दिया हार्ट। So heart is the pumping center. Heart is the pumping center who is creating the good pressure in the blood vessels, so blood can run in the normal and proper speed, so that this blood can reach in each and every cell. So this is the need of this heart, and this is the need of circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो प्रकार का सिस्टम होता है। ओपन का मतलब है कि पूरा ब्लड ऐसे अंदर पड़ा हुआ है और घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ये ओपन है। ये हमारे अंदर नहीं होता, ये कई प्रकार के दूसरे एनिमल्स में पाया जाता है। हमारे अंदर जो होता है वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज दिस इज द हार्ट। With the help of heart, blood is coming. Then with the help of vein, it is going back. So with the help of arteries, blood is coming. And with the help of vein, it is going back. So it is a very closed system. Closed system. तो हमारे अंदर होता है closed circulatory system. So in the human body, we have closed circulatory system. So this is the heart. Heart can be divided in 4 chambers. हार्ट को हम 4 चैम्बर्स में बांट सकते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर को कहते हैं वेंट्रिकल्स। सो ये राइट साइड का हुआ और ये लेफ्ट साइड का हुआ, ये राइट साइड का हुआ और ये लेफ्ट साइड का हुआ। सो वी कैन टेल वन चैम्बर इज कॉल्ड राइट एट्रियम और दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, और एक चैम्बर कहलाता है राइट वेंट्रिकल और दूसरे चैम्बर को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दिस वे वी हैव 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। हमारे हार्ट में ऐसे 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नाउ सपोज दिस इज द हार्ट, ये हमारा हार्ट है कि जो भी ब्लड वेसल्स, कोई भी जो हार्ट से बाहर निकलती है, कोई भी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से बाहर निकलती है उसे आर्टरी कहते हैं। आर्टरी मींस कमिंग फ्रॉम हार्ट, कमिंग फ्रॉम हार्ट। रिमेंबर दिस सेंटेंस। आर्टरी का मतलब है कमिंग फ्रॉम हार्ट और वेन्स का मतलब है कि गोइंग बैक टू हार्ट। ये बात ध्यान रखिएगा कि वेन्स का मतलब होता है कि जो हार्ट को वापस जाती है उन्हें हम कहते हैं वेन्स। सो द मीनिंग ऑफ आर्टरी हु आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट, जो हमारे हार्ट से आती है उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज। और वेन्स का मतलब है वो जो हमारे हार्ट को वापस जाती है। Okay, so now this is the heart. In the heart we have 4 chambers. So this is the right atrium, left atrium, right ventricle, left
ventricle. So RA means right atrium. LA means left atrium. RV means right ventricle. And LV means left ventricle. A का मतलब है ऊपर, एट्रियम हमेशा ऊपर होगा, अपर, और बी का मतलब है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल हमेशा नीचे होगा, लोअर. So atrium will be upper and ventricle will be lower. So this is the right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. So हार्ट में ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर्स. नाउ हमारे लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बाहर आता है, सो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर आता है. So from the left ventricle, blood is coming out. This is the pure blood. Pure blood. And this blood is reaching to all the cells of the body. हमारे शरीर की जितने भी सेल्स हैं उनको ये ब्लड मिलता है, और इसके माध्यम से सेल्स को मिलता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, फूड. So this pure blood is coming with the help of left atrium. तो जब हमारा सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल. So pure blood come from left ventricle, remember. ओके, तो यहां से ब्लड आता है नीचे वाले चैम्बर से, लेफ्ट वेंट्रिकल से. गॉट इट? नाउ so the pure blood coming from the left ventricle, it is going in each and every cells of the body. लेफ्ट वेंट्रिकल से यानी हमारे नीचे वाले चैम्बर से. क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर किसी बर्तन में पानी भरा है तो नीचे की तरफ पानी ज्यादा होगा, तो उसी चैम्बर से ब्लड आता है. सो ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल लोअर चैम्बर. नाउ cells is using this whole oxygen and nutrient. cells ने इसको यूज कर लिया. यूज करने के बाद ये पूरा का पूरा अशुद्ध ब्लड हमारे अब ऊपर वाले चैम्बर में आता है, राइट एट्रियम में. सो दिस इज द इम्प्योर ब्लड. इम्प्योर ब्लड कमिंग इन द right atrium. So this is called closed circulatory system. Closed circulatory system. चलिए एक बार फिर से देखते हैं. So this is the heart. ये हमारा हार्ट है. And this is the right ventricle. यहां से ब्लड निकलता है. From the right ventricle, blood is going out. So when blood is going out, this is the very bigger artery. ये बहुत मोटी आर्टरी होती है. This is the very bigger artery and this is called aorta. इस मोटी आर्टरी को कहते हैं aorta. Aorta. The meaning of aorta means bigger artery. और फिर ये ब्लड यहां से निकलता है, पंप होता है, धम धम धम, बहुत तेजी से पंप होता है. ये इतना तेजी से पंप होता है कि अगर यहां आप छेद कर दो तो ब्लड ऐसे निकलेगा जैसे कोई फुब्बारा फूट के निकलता है. सो ब्लड विल कम आउट लाइक ए फाउंटेन बिकॉज ब्लड इज हैविंग टू मच प्रेशर हियर. बहुत प्रेशर होता है. So blood is coming from the right ventricle
with the help of aorta। और फिर ये एओर्टा आगे चलकर थोड़ा सा पतला हो जाता है, थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि इसकी कई कई ब्रांचेस हो जाती हैं। किसी ब्रांच को कहीं जाना है, किसी ब्रांच को कहीं जाना है। इन बहुत सारी ब्रांचेस को हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी, इनको कहते हैं हम आर्टरी। तो हम कहते हैं ना, चलो रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, ये वही आर्टरीज हैं। और फिर आगे चल के इसकी और पतली पतली ब्रांचेस हो जाती हैं, और पतली पतली ब्रांचेस आती हैं। फर्दर इट इज डिवाइडिंग इन द थिनर ब्रांचेस। दे आर कॉल्ड आर्टेरियोल। आर्टेरियोल, और पतली हो गई तो आर्टेरियोल कह दिया। और आगे जाती हैं तो उसकी और पतली पतली ब्रांचेस हो जाती हैं, वेरी वेरी थिन ब्रांचेस। इनको कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज। So capillaries now this capillary is reaching to the cells। ये हमारी सेल है। Now capillaries is reaching to the cells and it is giving the oxygen and taking the CO2। So the exchange is happening here। Exchange happened here। Got it? So in this way, now, so from the heart, who is taking exit? First is aorta। एओर्टा मीन्स बिगर आर्टरी, बहुत मोटी आर्टरी को हम एओर्टा कहते हैं। देन इट इज डिवाइडिंग इन आर्टरीज। आर्टरी, so this is the division in the artery, and the further division will be arteriole, and the further division will be capillaries। So capillaries are reaching to cells। Now this is reaching to cell। So in this way, suppose this is the aorta। Now this is the arteries, now this is the arteriole, and further these are the capillaries। इन सब में कैसा ब्लड होता है? इन सब में होता है प्योर ब्लड। द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ब्लड? द मीनिंग ऑफ प्योर ब्लड मीन्स हैविंग मोर oxygen। So pure blood also called oxygenated blood। oxygenated blood, pure blood को ही हम कहते हैं oxygenated blood। So remember the meaning of pure blood and the meaning of impure blood। What is the meaning? The meaning of pure blood means having oxygen, oxygenated blood, and the meaning of impure blood means deoxygenated, means blood means having low oxygen। प्योर ब्लड का रंग लाल होता है, इट इज रेड इन कलर, एंड इम्प्योर ब्लड इज ब्लू in color। It is not the red, okay, or it will not be red। Fine। So this is the heart,
So first aorta is coming out, then becoming arteries, then becoming arteriole, then becoming capillaries, so these are the capillaries. So this capillary is passing from the cells. Now there is a exchange of nutrient and oxygen. अब यहां से जो ब्लड कहलाएगा, इसके पहले तक का ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसमें बहुत ऑक्सीजन थी। अब इसके बाद का जो ब्लड होगा, दिस विल बी द deoxygenated. Now the blood called deoxygenated blood. Now from the capillaries, now this blood is going in the small veins. They are called venules. Venules. Then it is going in the bigger veins. Bigger veins. These are called veins. Then it is going to the and becoming more bigger, and it is called vena cava. Vena cava. Vena cava. So from the venule, it has become veins, then become vena cava. Venules means smaller, veins means bigger, and vena cava means very bigger. And finally this blood coming to the heart in the right atrium. Okay, so in this way, this is the heart. So blood is coming in the right atrium with the bigger veins. These are called vena cava. So S vena cava and I vena cava. There are two bigger veins coming. So one is called superior vena cava and one is called inferior vena cava. यानी दो बड़ी बड़ी मोटी मोटी वेन्स के माध्यम से ब्लड हमारे राइट एट्रियम में आता है और ये एट्रियम हमारा अशुद्ध ब्लड से भर जाता है. So this is having impure blood. Impure blood. यहां पर impure blood होता है. In the right atrium we are having impure blood because पूरे शरीर से सारी वेन्स के माध्यम से हमारा ब्लड इसी चैम्बर में लौटकर आता है. So blood is coming back in this chamber. So it is impure blood. Okay, now अब आगे की बात. तो ये हमारा हार्ट है. This is our heart. संपूर्ण शरीर से अशुद्ध ब्लड आ गया from the whole body with the help of superior vena cava and the inferior vena cava. Impure blood has arisen here. यहां पर impure blood आ गया. अब क्या होगा? अब impure blood को नीचे भेजा जाएगा. Impure blood will go down. So this is the right atrium.
Now the impure blood come in the right ventricle. तो यहां से जब ये आएगा तो एक दरवाजा होगा, ये दरवाजा कहलाता है वॉल्व। वॉल्व में केवल वन वे एंट्री होती है, ओनली ब्लड कैन कम फ्रॉम डाउनवर्ड। सो दिस इज द वॉल्व। ये बॉल्व होगा, इस बॉल्व की मदद से ये इस चैम्बर में ब्लड पहुंचेगा। सो ब्लड इज कमिंग इन दिस चैम्बर। ओके, तो आपने देखा कि राइट साइड के दोनों चैम्बर में अशुद्ध ब्लड पाया जाता है। द इम्प्योर ब्लड फाउंड इन द बोथ चैम्बर ऑन द राइट साइड, वेदर द राइट एट्रियम और द राइट वेंट्रिकल, both chamber having impure blood or deoxygenated blood. So both chambers of the right side having impure blood means right atrium plus right ventricle, दोनों के बीच में, दोनों में impure blood होता है। both are having impure blood और deoxygenated blood, deoxygenated blood. Now so पूरे शरीर से ब्लड पहुंच गया कहां पर? हमारे राइट साइड में। So this is the right atrium, this is the right ventricle having impure blood. ओके, अब राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब आगे जो बारी है अब राइट वेंट्रिकल की है। तो ध्यान रखिएगा, हार्ट में से जब भी ब्लड बाहर फेंका जाता है, नीचे के चैम्बर से ही फेंका जाता है। ओनली द लोअर चैम्बर कैन पंप द ब्लड आउटसाइड ऑफ द हार्ट। केवल हमारे नीचे के चैम्बर ही ब्लड को हार्ट के बाहर फेंक सकते हैं। नाउ अब राइट वेंट्रिकल की जिम्मेदारी है कि इस ब्लड को शुद्ध करे। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल टू सेंड दिस ब्लड फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस। अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां भेजेगा? बताइए कि राइट वेंट्रिकल को अगर इस ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेजना है तो कहां भेजा जाएगा? टेल मी, कहां भेजेगा? So the right ventricle will send the blood to the lungs. अब राइट वेंट्रिकल इस ब्लड को कहां भेजेगा? लंग्स में भेजेगा। ओके, सो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल this blood is coming to both the lungs, in the right lung and in the left lung. तो हमारे राइट वेंट्रिकल से इस ब्लड को फेंका गया कहां? फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल दिस ब्लड हैज बीन पंप्ड इन बोथ द लंग्स, इन बोथ लंग्स। ओके, हमने कहा था लंग्स को बोलते हैं पल्मोनरी। द मीनिंग ऑफ लंग्स इज पल्मोनरी। द मीनिंग ऑफ लंग इज पल्मोनरी। पल्मोनरी कहते हैं लंग्स को। और अभी भी हमने आपको बताया था कि जो भी हार्ट से बाहर जाती है उसे हम कहते हैं आर्टरी। हु इज गोइंग आउटसाइड द हार्ट, दैट इज कॉल्ड आर्टरी। तो जैसे ये हार्ट है, सपोज दिस इज द हार्ट, and from the heart this artery is taking exit। क्योंकि हार्ट से जो भी ब्लड लेकर जाती है उसे हम कहते हैं आर्टरी।
Now this artery is going in the lungs. This artery is going in the right lung as well as in the left lung. And the name of this artery is pulmonary artery. तो बताइए कि पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध ब्लड होता है कि अशुद्ध ब्लड होता है? बताइए. द पल्मोनरी आर्टरी हैविंग प्योर ब्लड और द इम्प्योर ब्लड? टेल मी. इम्प्योर ब्लड. तो आपने देखा जनरली arteries having pure blood. Only one artery having impure blood. The name of this artery is, tell me, what is the name? केवल एक आर्टरी है जिसके पास इम्प्योर ब्लड है. उस आर्टरी का नाम क्या है? बताइए सभी लोग. Only one artery in the human body having deoxygenated blood or the impure blood, that is called pulmonary artery. इसे हम कहते हैं pulmonary artery. Okay, so remember this. Only one artery having this thing. Now, a pulmonary artery I. So this is the pulmonary artery dividing in two branches. Then the smaller pulmonary arteries and coming in the lungs, in the right lung and in the left lung. So going in the right lung, हमारे लंग में होते हैं एयर पाउच. So these are the air pouch. Or alveoli. Now these arteries are coming to the around the alveoli, surrounding all around the alveoli. Now this artery is reaching to the alveoli and releasing the CO2, and taking the ऑक्सीजन को ले लेती है. और जैसे ही ऑक्सीजन को लेती है ये ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो लुक एट दिस. सपोज दिस इज द alveoli और एयर पाउच, alveoli. So अशुद्ध blood, impure blood coming with the pulmonary artery. Now there is an exchange of gas. This is releasing the CO2 and taking the oxygen. Now this blood becoming a oxygenated blood. अब ये blood हो गया oxygenated blood. Now this become oxygenated. So this oxygenated blood now is coming back to lungs. So now this is pure blood or oxygenated blood. Okay. So this is the lung. ये हमारे lungs हैं. And this is the heart. So from the heart, pulmonary artery are coming with impure blood. Now, getting the oxygen
and releasing the CO2 and becoming pure and coming back to the heart. Now coming back to the heart. तो जो भी हार्ट को वापस आती है उनको हम कहते हैं वेन्स. Who is coming to the heart? They are called veins. So these are called pulmonary veins having oxygenated blood, pure blood. तो हमारे शरीर में जितनी भी veins होती हैं, all the veins are having impure blood, only one vein having pure blood. So all the veins of body are having impure blood. Only one vein is having pure blood. What is the name of that vein? Tell me. उस vein का नाम क्या है? बताइए. उस vein का नाम है pulmonary vein. That is called pulmonary vein. Got it? Now. So this blood, so this is the heart. So now, so impure blood first coming in the right atrium. This is the first entry. First entry. So impure blood first coming in the right atrium. Now, this is going to the right ventricle. This is the second entry. Second entry. Now, with the help of pulmonary vein, with the help of pulmonary artery, or PA, it is going in the lungs. So this is also impure blood. ये भी impure blood है. This is also impure blood. Now, from the lungs, it is coming back in the right atrium, left atrium, left atrium. So left atrium is receiving the blood from pulmonary veins. तो अब हमारी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पहुंच गया, लेकिन लेफ्ट एट्रियम तो इसे पंप नहीं करेगा. Left atrium is not having that much power to pump the blood because left ventricle having great muscles here. Left ventricle having too much muscle and the great muscles here. So left ventricle having that much power to pump the blood throughout the body. So now this blood will come in the left ventricle. So left ventricle also filled by pure blood. Then left ventricle will pump the blood throughout the body. Now this left ventricle will pump the blood. Okay. So right side of heart, either the right atrium or the right ventricle having impure blood. And left side of the heart, हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, चाहे वो लेफ्ट एट्रियम हो या लेफ्ट वेंट्रिकल हो, इसमें प्योर ब्लड होता है. और हु पंप द ब्लड, हु पंप द ब्लड थ्रू आउट बॉडी, that is
left ventricle. Okay, now so let's come back to and see this heart. ये हार्ट देखिए, so this is the right side of the heart and this is the left side of the heart. This is the atrium, this is the atrium, this is the ventricle and this is the ventricle. लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है किस चीज की, यहां पर जो ब्लड आता है ऊपर से नीचे एक बाल्ब से आता है, इस बाल्ब का नाम है माइट्रल बाल्ब, माइट्रल बाल्ब. So many person having this problem of the mitral valve. In the report you will see mitral valve regurgitation. regurgitation regurgitation का मतलब है उल्टी कर देना, उलट देना, उल्टी कर देना, उलट देना. तो जब ऊपर से नीचे ब्लड आता है, ऊपर से नीचे ब्लड आना चाहिए, केवल वन वे का रास्ता है, इसमें बैक एंट्री अलाउ नहीं है, केवल ऊपर से नीचे ब्लड आता है. लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि ये दरवाजा खराब हो जाता है. देखो दो तरह के दरवाजे होते हैं हमारे हार्ट में. एक ऐसा दरवाजा होता है ऐसा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोर इन द हार्ट. ये नॉर्मल दरवाजा जो हमारे घरों में होता है, दिस इज द नॉर्मल डोर. So we are having one side this side and one side this side. So these are called two cusp. two cusp यानी ऐसा दरवाजा कि दोनों तरफ खुलता है, उसे हम कहते हैं two cusp. So mitral valve having two cusp. two cusp. मानो कि ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे के दो पार्ट कर दिए, एक इधर है और एक इधर है. So there are two cusp. So mitral valve having two cusp. और mitral valve क्या होता है, केवल धक्के से खुलता है. धक्के का मतलब है कि ऊपर से नीचे जब ब्लड आता है तो खुलता है, बस ऊपर से नीचे ब्लड आएगा तो ही खुलेगा. आप नीचे से कितना भी धक्का मारो, mitral valve ऊपर की तरफ कभी नहीं खुलता. Mitral valve will open only in the downward side, so allowing the blood to go only lower side. Okay, so mitral valve having two cusp or it is called bicuspid valve. अब क्या होता है कि लोगों का ये दरवाजा, अब समझो कि कभी कभी हमने देखा है कि हमारे दरवाजे कमजोर हो जाते हैं बट और थोड़े से खुले रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये दरवाजा है, ये आपका घर है और आपका दरवाजा एकदम टाइटली क्लोज्ड है कि खोलोगे तभी खुलेगा, लेकिन पता चला कि धीरे धीरे दरवाजा पुराना हो गया और थोड़ा सा लीकेज हो गया इस दरवाजे में, इतना खुला रह गया. ये प्रॉब्लम होती है. अब क्या होगा कि जब ऊपर से पंप होगा ब्लड तो भी नीचे आएगा और नीचे से ब्लड पंप होगा तो भी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा. इसी को बोलते हैं अब हो गई प्रॉब्लम. सो दैट इज कॉल्ड mitral valve regurgitation. अब डॉक्टर ने बोला कि आपका वाल्व बदलना पड़ेगा. फिर डॉक्टर एक दूसरा वाल्व डालते हैं और उन वाल्व की भी एक्सपायरी भी कभी कभी होती है. कोई वाल्व 5 साल चलता है, कोई 10 साल चलता है, कोई 15-20 साल चल जाता है. पहले तो ये 1 साल ही चला करते थे, लेकिन धीरे धीरे अच्छे वाल्व बनने लगे हैं तो इनकी एक्सपायरी लंबी होती है. यानी डॉक्टर फिर क्या करते हैं कि जैसे आपके घर का दरवाजा थोड़ा ढीला पड़ गया तो अब आपने घर का दरवाजा बदलवा लिया. यू आर चेंजिंग द डोर when your door become weaker or leaking. In the same way, this is called mitral valve and the problem in the mitral valve is very very common. Okay, तो और ऐसे ही this is our heart.
इन दिस इज द माइट्रल वाल्व, इसे हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। माइट्रल वाल्व इज वाई कस्पिड वाल्व, ये वाई कस्पिड वाल्व होता है। ऐसे ही यहां भी एक वाल्व होता है। अब ये वाल्व ऐसा होता है, ये देखिए ये वाल्व ऐसा होता है, ये तीन तरफ से खुलता है, इसे बोलते हैं ट्राई कस्पिड वाल्व। यानी ऐसा दरवाजा जिसके तीन डोर होते हैं और तीन डोर खुलते हैं। So this is called tricuspid valve. So when the right atrium is sending the blood downward, it is coming downward with the tricuspid valve. So this is the tricuspid valve. And when the right atrium is sending the blood to the right ventricle, it is called mitral valve or the bicuspid valve. इसे bicuspid valve कहते हैं। तो इनकी भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। नाउ सो दिस इज द हार्ट। इन द हार्ट हियर वी आर हैविंग वन जनरेटर। हमारे हार्ट में यहां पर एक जनरेटर होता है जिसे हम कहते हैं पेस मेकर और एस ए नोड और साइनो एट्रियल नोड। ये जनरेटर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण हमारा हार्ट 72 पर मिनट धड़कता है। सो हार्ट इज डूइंग 72 बीट per minute because of this generator, and the name of this generator is called SA node, means sinoatrial node or the pacemaker. आजकल लोगों को यह भी खराब होने लगा है, तो पेसमेकर बिगड़ जाता है तो हार्ट की धड़कनें 72 से घटकर 40-50 और उससे भी कम हो जाती हैं। So pacemaker is one type of generator. Because of this generator, electricity is coming in the heart and heart is pumping the blood. क्योंकि जैसे आपकी मोटर पानी को पंप करती है, लेकिन मोटर को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो मोटर पानी को पंप नहीं करेगी। ठीक उसी प्रकार से ऐसे नोड और पेस मेकर का काम है इलेक्ट्रिसिटी देना, जिसके कारण हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये हार्ट है, सपोज दिस द हार्ट। सो हार्ट इज पंपिंग द ब्लड, हार्ट इज पंपिंग द ब्लड। तो हार्ट जब पंप करता है ब्लड, पंप, तो ब्लड की स्पीड होती है 120 की स्पीड से पंप करता है। इसे पूरा बोलते हैं mm ऑफ मरकरी। हार्ट ब्लड को पंप करता है 120 की स्पीड से, और पंप करने के बाद फिर हार्ट रिलैक्स होता है, एक्सपेंड होता है। आफ्टर द पंपिंग द ब्लड, देन हार्ट इज एक्सपेंडिंग, रिलैक्सिंग, एंड ड्यूरिंग द expanding, relaxing, heart is receiving the blood. So receiving the blood with the speed of 80. So pumping the blood. Pumping means contraction of heart. That is 120 millimeter of mercury. And relaxation or dilatation of heart, that is 80 mm of mercury. तो जब हार्ट ब्लड को पंप करता है इसे कहते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स होता है इसे हम कहते हैं डायस्टोल। दिस इज कॉल्ड डायस्टोल। तो जब हम बीपी नापते हैं, हम ऐसे दो नापते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। 120 means contraction of the heart and 80 means relaxation of the heart.
So it is called 120 by 80 millimeter of mercury. This is the called blood pressure. इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो बीपी का मतलब है आप ये भी नाप रहे हो कि हार्ट कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और ये भी नाप रहे हो कि फिर पूरा रिलैक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा. सपोज किसी ने हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया लेकिन रिलैक्स नहीं किया, तो ब्लड आएगा कहां से? ब्लड आएगा ही. रिलैक्स करेगा मतलब एक्सपेंड होगा तभी तो ब्लड आएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड चला जाएगा. सो कॉन्ट्रैक्शन मींस सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मींस डायस्टोल. सो कॉन्ट्रैक्शन शुड बी वेरी पावरफुल 120 and relaxation will be also good like 80. So in this way, contraction means pumping of the blood. Pumping, that is contraction. 120 millimeter of mercury. And relaxation should be 80 millimeter of mercury. अब मान लो किसी का ऊपर का बीपी गड़बड़ है, यानी ऊपर का बीपी हो गया 150, यानी कॉन्ट्रैक्शन और तेज हो रहा है. इफ देयर इज मोर कॉन्ट्रैक्शन, क्यों ज्यादा हो रहा है? माना कि आगे कहीं रुकावट है, कचरा है कैपिलरीज में, तो हार्ट को और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा. इन द कंडीशन ऑफ सम ब्लॉकेजेस, heart has to pump with more pressure, so systolic blood pressure will be higher, upper bp will be higher. और अगर कोई व्यक्ति दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है, तो भी ज्यादा ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट और तेज पंप करेगा. सो हार्ट विल पंप with more power if the person is doing exercise. That is called systolic bp, upper bp. और फिर ब्लड को भरना भी तो है वापस. So फिर then from the veins blood come to the atrium. With the pressure of heart will relax and the blood is coming back to the heart. तो जब हार्ट से ब्लड फेंका जाता है वो 120 का प्रेशर होता है, और जब हार्ट एकदम से एक्सपेंड हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, वो 80 का प्रेशर होता है. वो होना जरूरी है. अगर सब समझो नीचे का भी बीपी 120 हो गया, 120 में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन ही होगा, तो नीचे का बीपी कम होना जरूरी है. मान लो 80 होगा, तभी तो थोड़ा हार्ट एक्सपेंड होगा, फिर से पंप करेगा. सो पंप एक्सपेंड, पंप एक्सपेंड, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, अपर बीपी लोअर बीपी, अपर बीपी लोअर बीपी. So in that way, so upper BP is equal to systolic pressure. Systolic pressure. Pressure created during contraction of heart. इसे कहते हैं अपर बीपी. एंड लोअर बीपी means diastolic pressure. Diastolic pressure. Pressure created while expanding or relaxing the heart. So normally this is 120. Normally this is 120 and this is 80. 120 millimeter of mercury, 80 millimeter of mercury.
So that is called blood pressure. Okay. Okay, enough for today. Now we'll discuss tomorrow. अब आप खुद सोचिए, अपर बीपी कितना भी हो जाए, मतलब उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है. Upper BP should be 120. Now it is 220, means very high contraction, very very high contraction. अब हार्ट ऐसे हो गया जिसे, that is called atrial fibrillation, कि बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया. ऐसी यही तो बीमारियां होती हैं. These all types. Okay, so now closing the session.